یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. سنیچر 22 نومبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. یوکرین میں قیام امن کا امریکی منصوبہ لیک، روس کو عالمی تنہائی سے نکالنے اور یوکرینی فوج کی تعداد کم کرنے کی تجاویز. It's a good plan for both Russia and Ukraine, and we believe that it should be acceptable to both sides. امریکی صدر کی نیو یارک کے نو منتخب میئر ممدانی سے خوشگوار ملاقات، کڑے سوالوں پر بھی ایک دوسرے کی تعریف. A really good, very productive meeting. We have one thing in common. We want this city of ours that we love to do very well. دبئی ایئر شو میں انڈین لڑاکا طیارے کی تباہی، جانیے 550 کروڑ کے تیجس کی خصوصیات کیا ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ کی سزائے موت بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے. ویتنام میں شدید بارشیں اور سیلاب سے 41 افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر. پاکستان میں 23 نومبر کے ضمنی انتخابات میں فوج اور سول آرمڈ فورسز تعینات کرنے کی منظوری. مرکزی بینک کے افسران کا روپ دھار کر ڈھاکہ. بنگلور میں کیش وین سے 7 کروڑ روپے لوٹ لیے گئے. بینکاک میں آرگنائزر کے خلاف احتجاج کرنے والی فاطمہ بوش مس یونیورس بن گئیں. اور لاس ویگاس میں ہاؤس کیپنگ اولمپکس، 10 ٹیموں کا دلچسپ مقابلہ. ان مقابلوں کا مقصد مہمان نوازی کے شعبے اور ہسپتالوں میں کام کرنے والے فرنٹ لائن ورکرز کو نمایاں کرنا ہے. اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکہ کا یوکرین اور روس کے متعلق 28 نکاتی امن منصوبہ لیک ہو گیا ہے، جس میں یوکرین جنگ روکنے کے لیے متعدد تجاویز شامل ہیں، مگر کئی نکات شدید تنازع کا باعث بن رہے ہیں. منصوبے میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی خود مختاری کی تصدیق، روس اور یوکرین کے درمیان عدم جارحیت کا معاہدہ اور 100 دنوں میں انتخابات کرانے کی سفارش کی گئی ہے. متنازع تجاویز میں یوکرین کے بعض علاقے روس کے حوالے کرنے، یوکرینی فوج کو 6 لاکھ اہلکاروں تک محدود کرنے اور کیو کے نیٹو میں شامل نہ ہونے کی آئینی پابندی شامل ہے. ساتھ ہی کریمیا اور لوہانسک کو عملی طور پر روسی علاقہ تسلیم کرنے کی تجویز بھی موجود ہے. مسودے میں روس کو عالمی تنہائی سے نکالنے، اسے عالمی معیشت میں واپس لانے اور G8 میں شامل کرنے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے. تاہم یوکرین نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی زمین روس کو دینے یا فوجی طاقت محدود کرنے جیسے نکات قبول نہیں کرے گا. دوسری جانب صدر پیوتن نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ بات چیت کی بنیاد بن سکتا ہے، مگر تاحال جنگ اس وقت بھی جاری ہے اور روس صرف اپنی شرائط پر مذاکرات چاہتا ہے. That 81% will get into the European Union, we'll go on about our business, but we'll get back that 19% someday. For any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آبائی شہر نیو یارک کے میئر کے انتخاب کے دوران بار بار دھمکی دی تھی کہ اگر زہران ممدانی جیت گئے تو وہ اس شہر کے لیے وفاقی فنڈنگ روک دیں گے. چند روز قبل جب ممدانی انتخاب جیتنے کے بعد سٹیج پر آئے تو انہوں نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میرے پاس آپ کے لیے صرف 3 الفاظ ہیں، ٹی وی کا والیوم بڑھا لیجئے. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. مگر اب سے کچھ گھنٹے قبل دنیا بھر کی ٹی وی اسکرینوں نے ایک مختلف منظر دیکھا. ٹرمپ نے نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے، ایک ایسی ملاقات جسے سال کا سب سے بڑا سیاسی ٹاکرا سمجھا جا رہا تھا، مگر یہ توقعات سے برعکس رہی. بعض مبصرین نے تو اسے ایک قسم کی تعریفی محفل سے تشبیہ دی. But I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am, I will say. There's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And
Congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहने वाले ममदानी ने जीतने के बाद अपनी तकरीर में ट्रंप को फाशिस्ट यानी आमराना ख्यालात का हामिल कहा था और मुलाकात से कबल सदर की तर्जुमान ने उनके दौरे को कम्युनिस्ट का व्हाइट हाउस विजिट करार दिया था। लेकिन ओवल ऑफिस में जब ट्रंप और ममदानी आमने सामने आए तो दोनों का लहजा हैरान कुन तौर पर शाइस्ता और मसालियत अमेज था। इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दूसरे को फाशिस्ट और कम्युनिस्ट कहने वाले दोनों रहनुमाओं ने ओवल ऑफिस में एक दूसरे की तारीफ की और न्यूयॉर्क में महंगाई और रिहायशी बहरान हल करने पर मुश्तरका ताउन का वादा किया। I appreciated the meeting with the president, and as he said, it was a productive meeting focused on a place of shared admiration and love, which is New York City, and the need to deliver affordability to New Yorkers, the 8.5 million people who call our city their home, who are struggling to afford life in the most expensive city in the United States of America. ट्रंप ने ममदानी को अजीम मेयर करार देते हुए कहा कि वो इनकी मुकम्मल हिमायत करेंगे, जबकि ममदानी ने तमाम इख्तलाफात से तवज्जो हटाते हुए कहा कि उनकी तरजीह न्यूयॉर्कर्स के लिए जिंदगी को सस्ता बनाना है। सख्त सियासी तनाव के बावजूद इस मुलाकात ने वाशिंगटन में एक गैर मामूली नरम माहौल पैदा कर दिया है। ताहम तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मुस्तकबिल में इमिग्रेशन और दीगर पॉलिसी मसाइल पर दोनों का टकराव दोबारा सामने आ सकता है। इंडियन एयर फोर्स ने 17 से 21 नवंबर तक दुबई में होने वाले एयर शो के दौरान लड़ाका हथियारे तेजस नुमाइश के लिए रखे थे। एयर शो के आखिरी रोज भारतीय फिजाइया का तेजस लड़ाका हथियारा करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह हो गया, जिसमें पायलट भी जान की बाजी हार गया। हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:10 पर पेश आया। चंद रोज से सोशल मीडिया पर यह क्यास आराइयां भी थी कि एयर शो में रखे गए इस लड़ाका हथियारे के फ्यूल टैंक से तेल का अखराज होता रहा, लेकिन इंडियन हुकूमत की जानिब से फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए बनाए गए अकाउंट PIB फैक्ट चेक ने इनकी तरदीद की थी। PIB फैक्ट चेक ने एक्स पर लिखा था कि ये मामूल का अमल था, जिसमें तैयारे के एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम से आलूदा पानी निकाला गया। याद रहे, तेजस भारत का पहला देसी साख्ता हल्का और सिंगल इंजन लड़ाका हथियारा है, जिसकी कीमत तकरीबन 550 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये जदीद रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसी सलाहियतें रखता है। ये दूसरा मौका है कि फिजाइया को दिए जाने के बाद तेजस हथियारा हादसे का शिकार हुआ है। इससे कबल मार्च 2024 में राजस्थान में भी एक तेजस गिरकर तबाह हुआ था। माजी में भारतीय फिजाइया के MiG-21 हथियारे भी मुतअद्दिद हादसात का शिकार रहे, जिसके बाइस उन्हें उड़ते ताबूत कहा जाता था। अब फिजाई बेड़े में तेजस की शमूलियत का मकसद उन्हीं पुराने तैयारों की जगह लेना था। ताहम बार बार के हादसात ने इसकी कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म शेख हसीना को सजाए मौत मिलना और उनकी हवालगी की दरख्वास्त बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। जुमे को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने इस मामले पर पूछे गए सवालात पर महज इतना कहा कि ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। बांग्लादेश का अपना आइन और कानून मौजूद है। उनका ये भी कहना था कि बांग्लादेश के अवाम अपने जमहूरी और आइनी तरीकाकार के मुताबिक अपने मसाइल हल करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। रवाफते बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने साबिक वजीर आज़म शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम और निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग के इल्ज़ामात पर सजाए मौत का हुक्म दिया था। इक़्तिदार से बेदखली के बाद से शेख हसीना इंडिया में मौजूद हैं और इस केस का फैसला उनकी गैर हाजिरी में सुनाया गया था। दरियासना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत की बंदिश पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अफगान तालिबान पर पाकिस्तान मुखालिफ शिदत पसंद गिरोहों की हिमायत का इल्ज़ाम है और इसीलिए सरहदी क्रॉसिंग बंद कर रखी है। उनका ये भी कहना था कि तिजारत की बहाली में ताख़ीर की वजह अफगान तालिबान है। उनका कहना था कि फ़िलहाल मुज़ाकरात के लिए तुर्क वफद के दौरे की कोई तारीख तय नहीं हुई है। तुर्क वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा और खुफिया एजेंसी के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है, जिसके बारे में तर्जुमान ने कहा था कि इसका मकसद खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी और ममालिक के दरमियान अमन के क़याम को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाना है। ताहिर अंद्राबी के मुताबिक इस्लामाबाद तुर्की, ईरान और रूस की कोशिशों का खैर मकदम करता है। ताहम बातचीत में ताख़ीर की वजह पाकिस्तान नहीं
वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी ने सरहदी तिजारत को शदीद मुतासिर कर रखा है और इसका सबसे बड़ा बोझ चमन में फंसे हुए सैकड़ों माल बरदार ट्रकों के ड्राइवरों पर पड़ रहा है। ये गाड़ियां गुज़िश्ता 40 दिन से सरहद बंद होने के बाइस फंस कर रह गई हैं और हालात हर गुजरते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। मजीद तफसील चमन से अब्दुल बासित अचकजई की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। ये दस्ते 22 से 24 नवंबर तक क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर फ़राइज़ सरंजाम देंगे। पंजाब में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में इंतखाबात होंगे, जिनमें फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की हतमी तादाद सूबाई महकमा दाखिला और इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत के मुताबिक तय की जाएगी। वियतनाम में मुसलसल बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। एक हफ्ते में 41 अफराद हलाक जबकि 9 अफराद अब भी लापता हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक 52,000 से ज़ायद घर ज़ेर आब आ चुके हैं और 50 लाख घर व दुकानें बिजली से महरूम हो गई हैं। हुकूमती अंदाज़ों के मुताबिक कुदरती आफात से वियतनाम में जनवरी और अक्टूबर के दरमियान $2 अरब का नुकसान हुआ है। मुकामी खबर रसा इदारे तुईतरी के मुताबिक मुल्क के सबसे बड़े कॉफ़ी काश्त करने वाले इलाके डॉकलक में 10,000 घर ज़ेर आब आ गए हैं। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान कई इलाकों में 1.5 मीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। वाज़ेह रहे कि वियतनाम हालिया महीनों में शदीद मौसम की लपेट में है। फौज और पुलिस को मुतासरा इलाकों में तैनात करके लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि बाज़ सूबों में हंगामी हालत भी नाफिज कर दी गई है। भारतीय रियासत कर्नाटक के शहर बंगलोर में एक हैरानकुन और दिलेराना वारदात के दौरान मुसल्लह बहरूपियों ने मुल्क के मरकजी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के अफसरान का रूप धार कर कैश वैन से 7 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। वारदात बुध की दोपहर मसरूफ तरीन शाहराह पर उस वक्त हुई जब 6 अफराद एक SUV में सवार होकर कैश वैन के करीब पहुंचे और खुद को मरकजी बैंक के अफसरान जाहिर किया। वैन में ड्राइवर, कैशियर और 2 मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। डाकुओं ने स्टाफ से कहा कि वो बड़ी रकम की मुंतकली के कागजात चेक करना चाहते हैं। तस्दीक के बहाने उन्होंने गार्ड्स और कैशियर को हथियार वैन में रखकर अपनी SUV में बैठने को कहा, जबकि ड्राइवर को रकम के साथ गाड़ी चलाने की हिदायत दी। कुछ फासले तक दोनों गाड़ियां साथ साथ चलती रहीं। फिर डाकुओं ने ड्राइवर और बाकी अमले को नीचे उतारा और बंदूक की नोक पर 7 करोड़ रुपए अपनी गाड़ी में मुंतकिल करके फरार हो गए।
पुलिस के मुताबिक मौके पर सीसीटीवी कैमरों की कमी तहकीकात में रुकावट बन रही है। इब्तिदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि वारदात में इस्तेमाल होने वाली SUV की नंबर प्लेट जाली थी और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाली स्टिकर भी लगा हुआ था। पुलिस इस पहलू की भी तहकीकात कर रही है कि कहीं कैश ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी के अपने मुलाजमीन भी इस वारदात में मुलव्वस तो नहीं। कर्नाटक के वजीर आला के मुताबिक एक मुश्तबा गाड़ी बरामद की जा चुकी है, ताहम वजीर दाखिला ने बताया कि अभी ये वाजे नहीं कि यही गाड़ी ढाका में इस्तेमाल हुई थी या नहीं। उनका कहना है कि डाकुओं ने वारदात के बाद गाड़ियां तब्दील की और पैसे किसी और जगह मुंतकिल कर दिए। वजीर दाखिला ने यकीन जाहिर किया कि ये केस जल्द हल कर लिया जाएगा, जैसा कि इससे कबल इसी साल मई में पेश आने वाला हाई प्रोफाइल सोना चोरी केस हल किया गया था, जिसमें 59 किलो सोना चोरी हुआ था और बाद अज़ां 39 किलो सोना और कैश बरामद कर लिया गया था। बैंकॉक में होने वाले मिस यूनिवर्स मुकाबले में मेक्सिको की फातिमा बुश ने ताज अपने नाम कर लिया है, मगर उनकी कामयाबी एक ऐसे सीजन के बाद सामने आई जिसमें तनाज़ात, एहतजाज और धांधली के इल्ज़ामात नुमाया रहे। चंद रोज कबल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने फातिमा बुश को एक तकरीब में डमी करार दिया था और जब फातिमा ने वजाहत मांगी तो सिक्योरिटी को बुलाकर उन्हें खामोश कराने की कोशिश की गई। इस वाक़े के खिलाफ दुनिया भर से आई हुई उम्मीदवारों ने एहतजाजी वॉकआउट किया। मामला इतना बड़ा कि 2 जजेस ने भी इस्तीफा दे दिया और एक ने मुंतज़मीन पर धांधली के संगीन इल्ज़ामात आयद किए। मुकाबले की शफाफियत पर सवालात उस वक्त मजीद गहरे हुए जब सोशल मीडिया सार्फिन ने अंदाज़ा लगाया कि शायद तनाज़े को दबाने और कमज़ोर तासुर को दुरुस्त करने के लिए फातिमा को जितवाया गया हो। यह मुकाबला पहले ही नाजरीन की कम होती तादाद, बदलते समाजी रुझानात और ख़वातीन के इस्तेसाल से मुतल्लक तनकीद का सामना कर रहा था। बैंकॉक तनाज़े, मिस जमैका के स्टेज से गिरने और धांधली के इल्ज़ामात ने इस इवेंट के मुस्तकबिल को मज़ीद गैर यकीनी बना दिया है। लास वेगास के मुख्तलिफ होटल्स के मुलाजमीन ने 35वीं हाउस कीपिंग ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हुए सफाई के मुनफरिद और दिलचस्प मुकाबलों में एक दूसरे से सबकत हासिल करने की कोशिश की है। ये इवेंट एसोसिएशन फॉर क्लीनिंग एंड फैसिलिटेशन सॉल्यूशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़द हुआ, जिसमें 10 टीमों ने महारत, रफ्तार और सफाई के मयार की बुनियाद पर मुकाबला किया। शुरुका ने बिस्तरों की तरतीब, ट्रॉली मैनेजमेंट और सफाई के दीगर मराहिल में अपनी पेशा वराना महारत का अमली मुजाहरा किया। ये ओलंपिक्स होटल इंडस्ट्री में काम करने वालों की कारकर्दगी और मेहनत को सराहने के लिए मुनक़द किए जाते हैं। लॉस वेगस के होटलों के मुलाजमीन ने 35वें हाउस कीपिंग ओलंपिक्स जीतने के लिए एक दूसरे से मुकाबला किया। ये मुकाबला एसोसिएशन फॉर क्लीनिंग एंड फैसिलिटी सॉल्यूशंस के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए गए और इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों का मकसद मेहमान नवाजी के शोबे और हस्पतालों में काम करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को नुमाया करना है। मुकाबले में शरीक अफराद अपनी बेहतरीन महारतें दिखाते हैं ताकि तमगे जीत सकें। इस वायरल इवेंट में कई चैलेंजेस शामिल थे जो हाउस कीपर की सलाहियतों को परखने के लिए डिज़ाइन किए गए। चैंपियनशिप के चैलेंजेस में बेड बनाने का मुकाबला, वैक्यूम क्लीनर्स की रेस और मॉप रिले शामिल थी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी NFC का पहला इजलास 4 दिसंबर 2025 को तलब किया है, जिसमें वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए नए फार्मूले पर बहस होगी। वफाकी हुकूमत ने सूबों को इजलास में शिरकत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इजलास की सदारत वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे, जिसमें 4 सूबों के वज़राए ख़जाना और अराकीन NFC शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने NFC के पहले इजलास में शिरकत का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में साफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा वो सूबे के माली हुकूक के दिफा के लिए इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से NFC का इजलास एक ऐसे वक्त पर बुलाया गया है जब वफाकी हुकूमत को बढ़ते हुए अखराजात, जिसमें कर्ज़ों पर सूद की अदायगी और दिफाई अखराजात की वजह से माली वसाइल की कमी का सामना है, और सूबों से कहा जा रहा है कि वो इस बोझ को कम करने में अपना हिस्सा डालें। मुल्क में मौजूदा NFC के मुताबिक सूबों का काबिल तकसीम वसाइल में 57.5% हिस्सा है, जबकि वफाक को 42.5% मिलता है। सच वो नहीं जो सब दिखाते हैं,
सच वो है जो ZBC सैरबीन दिखाता है। मुल्क भर में TLP के खिलाफ सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हुआ है, बस सारा ड्राइवर लोग जो है ना गाड़ी के नीचे छुपा थे। ये कहानी लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब एक गोदाम में एक डब्बे से शुरू हुई। But like I'm not here to say, you know, I want to defend myself or I have done. पिछले 10 सालों से ZigZag न्यूज़ वो कहानियां सामने लाया जो आम मीडिया छुपाता रहा। पाकिस्तान के ये इंतहाई दौलतमंद खानदान कौन से थे, दौलत कितनी थी उनके पास। अब हम लेकर आए हैं ZigZag न्यूज़ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। सिर्फ 500 रुपए माहाना में आपको मिलेगा खुसूसी मवाद, गहरे तज्जिए और वो हकीकतें जो आम नाजरीन नहीं देख सकते। बस फीस भेजें जैज़ कैश या बैंक अकाउंट पर, स्क्रीनशॉट शेयर करें और हम आपको भेजेंगे प्राइवेट वीडियो लिंक। ZigZag न्यूज़, जहां खबर सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिखाई जाती है।